once again all of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point, and I am discussing the very important topic, that is polynomial, and I discuss all the definitions so that you can find out the solution of the questions. क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है. बिना डेफिनेशन के फॉर्मूले के क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना मुश्किल है, समझ में भी नहीं आएगा. तो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, आप सबसे पहले डेफिनेशन फॉर्मूला याद कीजिए, तो उसके बाद ही आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा. तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे. और मैंने जीरोज, रूट्स कैसे आप निकाल सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, सब की डेफिनेशन आपके सामने डिस्कस की है. तो उसी के अनुसार हम लोग कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालेंगे. आप एनसीईआरटी किताब देखिए. एनसीईआरटी किताब में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. व्हाट पॉलिनोमियल? 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट. I will discuss some parts. Similarly, you can find out the solution of the other parts. First part, let us see. First part is given at x is equal to 0. At x is equal to 0, you will have to find out its value. First of all, let me assume it, px. It is equal to px, 5x minus 4x square or plus 3. Okay? At this value, you will find out the value of it. This one, p0. P0 means 5. In place of x, you will write 0, minus 4. In place of x, write 0, 3. 5 into 0, 0. Minus 4 into 0, 0. And plus 3. Its value will be 3. Simply you can see. x जहां भी है वहां पर वैल्यू 0 कर दीजिए. 0 into any number that will be 0. 0 square में 0 and 0 any number that will be 0. Its value will be 3. Similarly, suppose let me take question number 1 के तो सभी पार्ट्स में बता देता हूं. Second part, x is equal to, that will be minus 1. Suppose minus 1 is given. Minus 1 you will put over here. In place of it, minus 1, p minus 1. 5 in place of x, that is minus 1, minus 4 in place of x, that is minus 1 square plus 3. 5 into negative number, positive and negative number, that will be negative. Okay? And you see minus 4, minus 1 square, power is even, that is y square of minus 1 will be positive. याद रखिए, इसी में गलती करते हैं ज्यादातर बच्चे. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 into 4, 4 plus 3. Okay? You add the negative numbers and plus positive number. That will be how much? Minus 6. Minus 9 plus 3, it will be minus 6. Its value will be minus 6. Very simple. Its third part let us discuss. At x is equal to 2. Here it is given the third part. That is same thing. Question will be same. X is equal to 2. You find out its value at 2. P जहां भी x है वहां पर 2 पुट अप कर दीजिए. देखिए लाइक दैट. 2 minus 4 और 2 स्क्वायर और प्लस 3. ये 3 है यहां पर. ओके, देखिए 5 into 2 हाउ मच? 10. यहां पे देखिए 2 स्क्वायर मींस 4, 4 into 4 16 एंड प्लस 3. देखिए यहां याद रखना भाई, 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4 और 4 into 4 16. मैंने लिख दिया यहां पर. तो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर दीजिए. 13 minus 16. 13 minus 16 कितना होगा भाई? minus 3. P2 it will be equal to minus 3. Like that you can find out the solution. Let me take one more question. Question number 2. Similar kind of thing you will have to see. Find the different values you will find out. See, here it is given. Find like that P0, P1. Here the values are not given in the form of x. And P2. Similar kind of values are given. For each of the following polynomial. For the polynomial. Different polynomials are given. That is why I will tell you one first of all. That is first part. What is first polynomial? Py. Py is given. It will be equal to y square minus 1 plus 1. This is minus y. Okay.
इट इज गिवन माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, P0 निकाल दीजिए। इन प्लेस ऑफ y wherever it is y you write 0, 0 square minus 0 plus 1, its value will be 1. Let me find out the value of P1। जहां पर भी y है वहां पर 1 पुट अप कर दीजिए। देखिए 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस 1 प्लस 1। देखिए 1 से 1 कैंसिल, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्या निकालेंगे, P2 निकाल दीजिए भाई। चलो जहां भी x है वहां 2 रख दीजिए। 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, इट विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस 1। देखिए पॉजिटिव के कितने हो गए, 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 कितना होता है, 3। ओके, लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। देखिए कितना सिंपली हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। जहां भी y था वहां पे हमने उसकी वैल्यू पुट अप कर दी। ओके, लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ इट सो दैट यू विल नॉट फेस द प्रॉब्लम। इसी में ही हम लोग इसका ले रहे हैं, सपोज फोर्थ पार्ट ले रहे हैं, बाकी सब सेम ही है, आप निकालेंगे। बिकॉज प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, ये याद रखना। वेरिएबल क्या है हमारा, x माइनस 1 और x प्लस 1। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर जहां भी x होगा वहां पे 0 पुट अप करेंगे आप। देखो x की वैल्यू 0 है, इन प्लेस ऑफ x इज 0, तो क्या प्रूव है, P0 की वैल्यू निकालेंगे 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 और 1। अब देखिए इसमें क्या, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नंबर, दैट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट अब क्या निकालते हैं, P1 निकालते हैं भाई। चलिए P1 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P1। जहां भी 1 माइनस 1, जहां भी x है वहां पर 1 रख दीजिए, 1 प्लस 1। अच्छा जी यहां पे बताइए 1 माइनस 1 तो 0 हो गया ना, एक ब्रैकेट में 0 आ गया और एक में 2 आ गया। 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर, दैट विल बी 0, इट्स वैल्यू इज 0। सी अनदर क्या निकालना, P2 निकालना। सपोज P2 भी निकाल दीजिए भाई। देखिए 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, उसी में पुट अप करना x के स्थान पर। देखिए यहाँ x के स्थान पर 2 पुट अप कर दीजिए, यहां भी 2 और फिर यहां पर भी 2, तो कितना हो गया भाई बताइए, 2 माइनस 1 1, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 आ गया और यहां पर 3 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 आ गया ना, 1 इंटू 3, लाइक दैट। कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। आप सभी का सॉल्यूशन, जो बाकी पार्ट्स बचे हैं उनका सॉल्यूशन निकालिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। मैं सबका सॉल्यूशन निकाल दूंगा तो आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू डू द प्रैक्टिस। विदाउट द प्रैक्टिस नथिंग कैन बी डन। क्वेश्चन नंबर 3, लेट मी टेक सम पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सी क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। राइट वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब आपको वेरीफाई करना है। देखिए वेरीफाई क्या वेरीफाई करना है भाई, कि जो भी वैल्यूज हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं मैं, वेरीफाई x इज इक्वल टू माइनस 1/3। फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल है भाई, देखिए पॉलिनोमियल 3x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल, ये इज इक्वल टू px है भाई, px पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब इसका जो जीरो है ये माइनस 1/3 है या नहीं। डियर स्टूडेंट मैं पहले ही बता चुका, स्टैंडर्ड वैल्यू बताई थी, c इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। कब होगा, इफ pc विल बी इक्वल टू 0, यानी कि x का स्थान पर c रखो और यदि pc की वैल्यू 0 आ जाती है, pc c का स्थान पे क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 वट एवर इट मे बी। इफ द वैल्यू ऑफ pc विल बी इक्वल टू 0, तो क्या बोलेंगे, c इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, x के स्थान पे इस वैल्यू को पुट अप करेंगे, देखेंगे यदि p इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इनमें डिफरेंस भी बता चुका मैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरोज एंड रूट्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने यही बताया था, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं, सारी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, तभी, चूंकि मैथमेटिक्स एक वीडियो में तो आ नहीं सकता, दुनिया भर की वीडियो पोस्ट करनी पड़ेंगी तभी आ सकता है। इसलिए फ्रीक्वेंटली यू मस्ट हैव टू सी माय वीडियोस। देखिए फिर आप कितने अच्छे मैथमेटिक्स में परफेक्ट बन जाएंगे, और मेरे साथ काम कीजिए तो देखिए फिर आप अपना भविष्य। px में ले रहा हूं भाई, यहां पर px क्या है फर्स्ट पार्ट में, दैट इज ये लिया, यहां पे सॉल्यूशन निकालेंगे। px विल बी इक्वल टू 3x प्लस 1।
अब हमको चेक करना है इसका जीरो है या नहीं। जहां पर भी ये x है वहां पर क्या रखेंगे बताइए, -1/3 पुट अप कर दीजिए, इट विल बी इक्वल टू 1, दिस इज 3 एंड -1/3 एंड +1। बताइए 3 से 3 कैंसिल हो गया तो -1 + 1 इट विल बी 0। तो इसकी वैल्यू देखिए p -1/3 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0 आ गई। इट्स वैल्यू इज 0। व्हाट डज इट मीन? शो -1/3 इज ए 0, ऐसे लिखेंगे आंसर 0 ऑफ 3x + 1। ये इसका 0 है, 0। तो इसलिए बार बार देखिए। अभी फिर मैं चलिए एक पार्ट और बता देता हूं, नेक्स्ट पार्ट बताता हूं, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या है भाई, सेकंड पार्ट में थोड़ा थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 4/5। पोलिनोमियल क्या है भाई, 4/5। पोलिनोमियल है हमारे पास में px इज इक्वल टू 5x - π। देखिए ये है पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू π/4। देखो भाई सॉल्यूशन देखिए। अब मैं px इज इक्वल टू 5x - π लिख रहा हूं और x के स्थान पे क्या पुटअप कर देता हूं, 4/5। ठीक है, 4/5 पुटअप कर देता हूं भाई, देखिए, और -π। ठीक है, हमारे पास पोलिनोमियल है, फिर से देख लीजिए, 5x - π और वैल्यू है हमारे पास 4/5। चलिए देखते हैं। देखिए 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 - π आ गई, 0 तो नहीं है। तो क्या बोलेंगे हम, सो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए 0 ऑफ व्हाट पोलिनोमियल, px क्या है, 5x - π। ये इसकी 0 नहीं है, क्योंकि 0 नहीं है इसकी वैल्यू। ठीक है, वेरी सिंपल। चलिए और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका 6th पार्ट ले लेते हैं। ठीक है भाई, सी द 6th पार्ट। 6th पार्ट देखिए। 6th पार्ट में क्या दिया हुआ है भाई, सीधा 6th पार्ट में केवल वैल्यू चेंज करूंगा। 6th पार्ट में दिया हुआ है x इज इक्वल टू -m/l। ठीक है, एंड व्हाट इज द पोलिनोमियल, यू सी द पोलिनोमियल। जो पार्ट आप चाहे ले सकते हैं, px इज इक्वल टू lx + m, lx + m, x इज इक्वल टू -m/l। वेरीफाई इज ए 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। चलिए भाई सॉल्यूशन निकालिए। px क्या है बताइए, lx + m, और x के स्थान पे मैंने क्या बताया, क्या रखना है, -m/l। चलिए l x के स्थान पे रखिए -m/l और +m। देखिए जहां पर x है मैंने -m/l रखा है, l से l कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल कर दीजिए, -m और +m। -m + m क्या हो गया, 0। तो p देखिए -m/l की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। तो ये तो इसका 0 हो गया ना, देयरफॉर x इज इक्वल टू -m/l इज ए 0 ऑफ px। क्या px पूरा लिख देता हूं, lx + m। ये इसका 0 है। दैट इज वेरी सिंपल। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द zeros ऑफ द अदर polynomials. Let me take one more question. Question number 4. Question number 4 you will have to see and check. Find the zeros of the polynomial in each of the following. That question also I told you. How you can find out the zeros of the polynomial. Question number 4. Find zeros. Zeros of polynomial. What polynomial? What polynomial you will see? Zeros of the polynomial. First of all, let me take first part. Px, it is given x + 5. My dear student, I already told you, you can find out the zeros of this polynomial if px is 0. Okay? If px is 0, px, the value of px 0 होनी चाहिए, तभी तो zeros निकालेंगे ना, जैसे अभी हमने निकाला था। x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, px की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो वो वैल्यू x की क्या हो गई, zeros। If px is equal to 0, then what will happen? X + 5 is equal to, देखिए px के स्थान पे 0 रखेंगे आप, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा ना। जब इसके स्थान पे मैंने 0 रखा ये, तो क्या हो गया भाई, x को ट्रांसपोज कर दीजिए। Is a 0 of px,
पी एक्स मतलब क्या है, पी एक्स एक्स प्लस 5। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी जा सकते हैं यहां से, x माइनस 5 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, -5। देखो यहीं पे देख लीजिए, -5 रखा, यहां भी -5 रखा, -5 + 5 इज इक्वल टू 0। तो p - 5 इज इक्वल टू 0, तो -5 क्या हुआ, इसका 0 हो गया ना। तो सिमिलरली आप जीरोस निकालेंगे तो लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट द जीरोस। वेरी सिंपल मेथड, मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए एक आध पार्ट और ले लेते हैं हम लोग। चलिए इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। लेट मी टेक द थर्ड पार्ट। लेट मी टेक द थर्ड पार्ट क्या है भाई, सी द थर्ड पार्ट। सिमिलर काइंड ऑफ कैलकुलेशन विल बी देयर। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, px इज गिवन 2x + 5। अब इसका जीरो निकालना हमें, फिर वही इफ px will be equal to 0, तो px के स्थान पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2x + 5 will be equal to 0, then x will be equal to -5 you take from left side to right side, x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, -5/5। अब आप देखो x के स्थान पे यहां पर यदि आपने -5/2 रख दिया, 2 से 2 कैंसिल, -5 + 5 तो 0 आ जाएगी। तो क्या करेंगे, इज ए जीरो ऑफ px। व्हाट्स px, 2x + 5। अब दोनों साइड से चेक कर सकते हैं, अब x के स्थान पे ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, दैट इज व्हाई द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -5/2। यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू टेल यू, सेवंथ पार्ट ऑफ इट। सी द सेवंथ पार्ट, you see what is the seventh part? Seventh part you will see cx + d and c does not equal to 0। चूंकि c 0 हो गए तो आप इसकी 0 नहीं निकाल सकते। और cd क्या है भाई, आर रियल नंबर्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ द रियल नंबर्स। एक वीडियो मैंने सी की पोस्ट की है रियल नंबर्स की, उसमें इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, फ्रैक्शन, एवरीथिंग, इरेशनल नंबर, एवरीथिंग दैट मेंशन्ड इन दैट वीडियो, उसको देखिए आप, सारे नंबर क्लियर हो जाएंगे। दीज आर द रियल नंबर्स। रियल नंबर बस सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो इसकी 0 निकालेंगे, सेम थिंग। इफ px will be equal to 0, then what will happen, px will be equal to cx + d। और इसकी वैल्यू आपने 0 पुट अप कर दी तो cx + d, d को आप इधर ले लीजिए, -d = cx, और c से डिवाइड कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = -d/c। d/c इज ए जीरो ऑफ px। जो px वैल्यू लिया ना, इसकी 0 क्या आ गई भाई, cx + d की 0 क्या आ गई, -d/c। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, यही आएगी। चलिए इनके इसके कुछ पार्ट्स आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, यू मस्ट हैव टू सी द अदर पार्ट। लेट मी टेक द वन मोर क्वेश्चन ऑफ इट। आई थिंक टोटल क्वेश्चंस आर 4। एक आध पार्ट और बता देता हूं। अच्छा देखिए, अब इसमें मैं 6th पार्ट एक और ले लेता हूं, क्योंकि 7th पार्ट मैंने बता दिया था। लेट मी टेक द 6th पार्ट। 6th पार्ट क्या है भाई, व्हाट इज द 6th पार्ट? ऑल ऑफ यू सी the 6th part of it. 6th part is px, that will be ax, but a does not equal to 0। a 0 हो गया तो कुछ नहीं बचेगा, 0 पॉलिनोमियल आ जाएगी फिर। ओके, इसका आप क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे। फिर वही सेम थिंग, इफ px will be equal to 0, then what will happen, ax will also be 0। px के स्थान पे 0 रख दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। 0 इज ए जीरो ऑफ द polynomial। what polynomial, px is equal to ax। 0 आ गया भाई। देखिए x के स्थान पर, अब इसमें आप 0 रख दीजिए x के स्थान पर, then the value of px will be equal to 0। that is why it will be the zero of the polynomial। okay, इसी तरह से मैंने जीरो के भी क्वेश्चन बता दिए, रूट्स के भी पॉलिनोमियल रूट्स के भी क्वेश्चन बता दिए। you must have to see the roots also, different roots I have taken, and you can find a solution of other questions which are very very important, because practice make a man perfect। practice that is most essential। and my dear student, मैंने पहले ही बताया था, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है
सभी स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में परफेक्ट बनाना। और ये मेरा मिशन कब पूरा हो सकता है? when you will help me. And how you can help me? Because you share these my videos to your friends. Like the videos, share my videos to the friends. Your friends will be benefited. Each and every child will be benefited from my experience, which I am providing you. I am sharing with you. That is why, like my videos, share my videos, press the icon so that my fresh videos, each and every video will be with you immediately, and subscribe my channel. Thank you to all of you.